Good morning, students. We are studying chapter The Living World. Until now, we have talked about the different kinds of living organisms present on the earth and the naming of these living organisms. Now, today we are going to talk about the classification. So, what is classification? It is the grouping of living organisms. And grouping of the organisms is done on the basis of the similarities and the dissimilarities. So, we can see that the grouping of organisms based on their observable characters is called as a classification. And in classification, living organisms are grouped in convenient categories. Whatever the characters will be visible, according to them, these organisms, they are kept in different categories. For example, whenever we talk about the plants, animals, dogs, cats, or insects, so suppose we are just thinking about the dog and a picture of a dog comes in our mind. In the same way, when we talk about cat, the picture of cat comes in our mind, and it can be, the dog can be Alsatian. And similarly, suppose we talk about the mammals, so what the picture comes in our mind, what type of picture? That an animal with external ears and body hair. So means if we talk about any of the organism, then the picture of that organism comes in our mind. और वहाँ जो mind में हमारे जो picture आ रही है, that is because of the some observable characters. So in the same way, if we talk about the wheat, the picture of the wheat plant will come in our mind. Then whatever about the living organisms, or if we are thinking about any kind of living organism, picture of that animal or the organism or the plant comes in our mind. So here, if we have talked about dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, so all these are the different categories, and these categories, they are used to study organisms. So for these categories, what term we can use? We can use the term taxa. मीन्स चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, चाहे काव है, डॉग है, एनिमल एलिफेंट है, all these represent a taxa. This is the scientific name for the categories. Now this taxa, in this, if we talk about dog, dog is a mammal. And what are mammals? Mammals are animals. So we can say animals, mammals or dogs. ये सब क्या है? All these are taxas. सो यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इन एक्चुअल वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो हेयर द साइंटिफिक टर्म फॉर एनी यूनिट यूज्ड इन द साइंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो वेन एवर वी टॉक्ड अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पर जो भी हम साइंटिफिक टर्म यूज़ कर रहे हैं किसी भी यूनिट के लिए, फॉर एग्जांपल चाहे वो मैमल है और इट इज़ अ प्लांट और इट इज़ एन एनिमल, तो जो साइंटिफिक टर्म हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी यूनिट के लिए, इन एक्चुअल दैट इज़ कॉल्ड एज टेक्सा. Now next term, it is taxonomy. So what is taxonomy? It is a science which deals with the grouping and naming of the we can say grouping of the organisms, because in naming we talk about the nomenclature. So it is the science of defining groups of biological organisms. अब जो grouping की जाएगी वो किस बेस पर होगी? On the basis of characteristics, जिसे हमने classification भी broad sense में कहा था. सो टेक्सोनॉमी जो है, इट इज़ क्लासिफिकेशन. जनरली वी कैन यूज़ फॉर एनीथिंग. We can use the classification for the books also, for the clothes also, for the different things lying in your room. But for in biology, we use the word taxonomy. So it is the term and which is used in science, which deals with, or we can say it is a science which deals with the grouping of living organisms. और grouping हमेशा किस में होती है, किस पर based होती है? Shared or observable characters. Now दिस टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं कि वी टेक द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, और इवन उसकी जो इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर, लिविंग इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, यानी उसके आसपास कौन से ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, और व्हाट आर द अबायोटिक फैक्टर्स. तो इन सारी चीज़ों को मिला करके हम क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी. अगर हम टेक्सोनॉमी की हिस्ट्री की बात करें तो इट इज़ नॉट अ न्यू टर्म. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द प्री हिस्टोरिक मैन, शुरू से भी अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग क्या करता था? अपनी बेसिक नीड्स के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट था?
प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। इवन फॉर क्लोथ्स ऑल्सो जो है वो ही वॉज डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, एंड फॉर शेल्टर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड था, ये सब उसकी नीड्स थी। और इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसने भी क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर लिया, ताकि वो कर सके, पहचान सके कि फ्रॉम दिस आई हैव टू टेक फूड, फ्रॉम दिस एनिमल आई हैव टू टेक द क्लोथ्स, उसकी स्किन को एज अ क्लोथ्स यूज़ करना है, और फ्रॉम दीज थिंग्स ही हैज़ टू प्रिपेयर और कुक द फूड। तो यानी कि क्लासिफिकेशन जो है वो प्री हिस्टोरिक मैन ने भी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया। यानी कि जो टेक्सोनॉमी है, ये टर्म इट वाज क्वाइंड बाय इट वाज गिवन बाय कार्ल्स लिनस, एंड कार्ल्स लिनस ही इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। So we can say that Carl Linus is known as father of taxonomy, and he coined the term taxonomy. And what is done in taxonomy, अभी हमने बात की कि ग्रुपिंग की जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो ग्रुपिंग के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे दैट इज कैरेक्टराइजेशन। नाउ डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर्स वी विल आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स। जब हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर उन्हें हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। और जब वो डिफरेंट ग्रुप्स में आ चुके हैं देन देयर नेमिंग विल बी डन विच इज़ नोन एज नॉमेनक्लेचर। सो दीज आर द वेरियस प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। तो ये जो हैं प्रोसेस हैं किसके, टेक्सोनॉमी की। नाउ नेक्स्ट टर्म इज सिस्टमैटिक्स। क्या है सिस्टमैटिक, इन एक्चुअल सिस्टमैटिक एक जो है लेटिन वर्ड है, लेटिन लैंग्वेज का, और द वर्ड इज सिस्टमा। लेटिन वर्ड क्या है, सिस्टमा, एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अरेंजमेंट की बात हो रही है, सो वी कैन डिफाइन सिस्टमैटिक्स एज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स। अब सिस्टमिक जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी जो सिस्टमैटिक्स है, इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो पास्ट में प्रेजेंट थे या फिर वो प्रेजेंट में अभी हैं, उनके आपस में किस तरह के रिलेशनशिप्स रहे, उनके बारे में जानने के लिए जो है हम क्या पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक्स। सो वी कैन से डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनकी डाइवर्सिटीज़ की, और उनका आपस में जो उनका इंटर रिलेशनशिप है, इन सब की स्टडी के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ सिस्टमैटिक्स। नाउ दिस सिस्टमैटिक्स इट वाज यूज्ड बाय द कार्ल्स लिनस, और उन्होंने क्या किया, अपनी एक बुक पब्लिश की। नेम ऑफ द बुक इज़ सिस्टमा नेचर, और सिस्टमा नेचर में इन्होंने जो है सबसे पहले सिस्टमैटिक्स वर्ड्स को यूज़ किया। और सिस्टमैटिक्स जो है इसमें हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। और इससे जो इवोल्यूशन मीन्स विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन द पास्ट एंड what टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ नाउ। सो एक इवोल्यूशन के बारे में हमें पता चल रहा है कि what द चेंजेस हैव कम इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो है इवोल्यूशन रिलेशनशिप, यानी कि अर्लियर इस तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशंस थी, that's why this kind of living organism survived। और अब because the environmental conditions have changed, so the we can say that there are changes, और changes आ गए हैं in the basic body designs of living organism। और जो चेंज हो, ग्रेजुअल चेंज हो जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फॉर दैट वी यूज़ द टर्म इवोल्यूशन। सो हम कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक्स जो है ये हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, कि किस तरह से उनके पास्ट वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे दे वर ऑफ विच काइंड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब तक हमें टेक्सोनॉमी पता चल चुका है कि ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ग्रुपिंग के लिए मैंने बोला कि देयर शुड बी सम बेसिस। अब जब हम ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक हिरार्की ऑफ स्टेप्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हिरार्की ऑफ स्टेप्स में इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो हिरार्की का हर एक स्टेप जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ रैंक और अ कैटेगरी।
So we can say, suppose I say kingdom, so it is a rank or category. After that kingdom, phylum is there, so it is also a rank. Kingdom, phylum, then order, family, genus and species. ऑल दीज आर द रैंक्स और द कैटेगरीज। यानी जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम एक स्टेप वाइज चलते हैं, ठीक है, और उन स्टेप्स का एक हिरार्की है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे टॉप मोस्ट होता है किंगडम और सबसे लोअर मोस्ट रैंक जो होता है दैट इज़ स्पीशीज़। तो यहाँ पर जो हिरार्की फॉलो हो रही है इनके अरेंजमेंट की, उसे हम क्या कहते हैं, रैंक। यानी ये देखिए, ये फर्स्ट फैमिली इज़ अ रैंक, स्पीशीज़ भी रैंक है, ऑर्डर इज़ ऑल्सो अ रैंक, फैमिली इज फाइलम इज़ ऑल्सो अ रैंक। तो क्लासिफिकेशन में जो है हर एक स्टेप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये जितनी भी कैटेगरीज हैं इनको टुगेदर हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक हिरार्की। सो किसी भी क्लासिफिकेशन की हिरार्की में जो भी स्टेप्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल आई रॉट किंगडम और आई रॉट फाइलम, तो ये सब इंडिविजुअली क्या नाम दिया इनको, रैंक्स। लेकिन अगर इनको सबकी अरेंजमेंट की हम बात करें तो यहाँ जो हम वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज़ हिरार्की। यानी उसको क्लासिफिकेशन में हमने स्टेप वाइज अरेंज किया। ईच लेवल इन द हिरार्की रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। यस, यहाँ हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, सबसे सिंपलेस्ट लोवेस्ट जो कैटेगरी है दैट इज स्पीशीज़। स्पीशीज़ से जीनस, जीनस के बाद फैमिली, क्लास, ऑर्डर जो भी हैं, इन सब के अंदर हम क्या पढ़ते जाएंगे कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हर एक स्टेप पर क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो सो स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। किंगडम जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा एंड स्पीशीज़ जो कि लोअर मोस्ट लेवल पे है वो सबसे ज़्यादा सिंपल होगी। सो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और हिरार्की का हम एक एग्जाम्पल लेकर के बात कर सकते हैं कि सपोज वी टॉक अबाउट द इंसेक्ट्स। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो माइंड में एक पिक्चर आती है एंड वी नो अबाउट द इंसेक्ट्स दैट इंसेक्ट्स बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब ये फाइलम क्या है, देखिए बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हमने किंगडम्स में डिवाइड किया, किंगडम्स फर्दर डिवाइडेड हैं फाइलम में। तो जो एनिमल किंगडम है, क्योंकि 5 किंगडम्स आर देयर, 5 किंगडम्स जो हैं यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 ग्रुप्स में बांटा गया, सबसे कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स जिनको कहा गया किंगडम्स। मोनेरा फर्स्ट ग्रुप है, किंगडम है। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटी एंड देन एनिमलेया। सो दीज आर द 5 किंगडम्स एंड आफ्टर किंगडम जो है हिरार्की में क्या आता है, फाइलम। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स आर केप्ट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में इनको क्यों रखा गया, क्या कैरेक्टरिस्टिक देकर रखा गया, इन एक्चुअल पोडा मीन्स लेग्स एंड आर्थ्रो मीन्स ज्वाइंटेड। यानी कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी लेग्स क्या होती है, दे हैव 3 पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स। सो यानी इंसेक्ट्स के पास कौन सा रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर है, ज्वाइंटेड लेग्स। और उस हिसाब से उनके उस कैरेक्टर को देख करके उन्हें एक पर्टिकुलर रैंक दिया गया है, चाहे वो रैंक किंगडम का हो चाहे वो रैंक फाइलम का हो। किंगडम की बात करेंगे तो इंसेक्ट्स को किस में रखा गया है, कौन से उसमें, एनिमलिया के अंदर। और अगर हम बात करें फाइलम की तो उन्हें फिर रखा गया है फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के हिसाब से उन्हें जो है डिफरेंट रैंक्स दिए गए हैं और उन रैंक्स की जो है उनको उनका जो अरेंजमेंट है उन रैंक्स का दैट इज़ कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिक हिरार्की। अब जो टेक्सोनॉमिक हिरार्की है इसमें हमने पढ़ लिया कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ होगा। अब चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, सभी लिविंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हिरार्की की लोवेस्ट कैटेगरी है दैट इज़ स्पीशीज़।
सो इसके लिए जो डिफरेंट हिरार्की की हम बात कर रहे हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, इन सब के लिए क्या ज़रूरी है दैट वी शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। और बेसिक नॉलेज के बेस पर वी विल आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स, और आइडेंटिफिकेशन से जो है उनकी स्टडी और उनकी नेमिंग जो है दैट बिकम्स ईजियर। सो फर्स्ट जो कैटेगरी है टैक्सोनॉमिक के कैटेगरी में, सबसे पहले जो है लोवेस्ट कैटेगरी इज़ स्पीशीज़। एंड व्हाट इज़ अ स्पीशीज़? हम जनरली बात करते हैं कि ये बर्ड्स की स्पीशीज़ है, ये इस वीट की स्पीशीज़ हैं। सो स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन विच इंडिविजुअल्स कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। यानी इनकी ये स्पेशलिटी होती है, अगर हम कहें कि हमने एक वीट ले लिया और एक हमने राइस ले लिया, तो क्योंकि दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो अगर उनकी क्रॉस ब्रीडिंग भी करवाई जाती है तो जो सीड फॉर्मेशन होगी वो प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है ना। यानी जब दो एक जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड कर सकते हैं, उन स्पीशीज़, उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम क्या कहते हैं? स्पीशीज़ कहते हैं। सो मेंबर ऑफ स्पीशीज़ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। ये सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ किस में होती हैं? स्पीशीज़ में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका। अब यहाँ हम जो इंडिका की बात कर रहे हैं, एक्चुअल इंडिका इज़ अ स्पीशीज़। देन इन सोलेनम ट्यूबेरोजम, जो कि साइंटिफिक नेम है पोटैटो का, इन दैट ट्यूबेरोजम जो है ये स्पीशीज़ हैं, एंड ऑल द ट्यूबेरोजम्स दे विल हैव सेम कैरेक्टर्स, ठीक है, क्योंकि सारे ट्यूबेरोजम क्या होंगे? पोटैटो होंगे, और अगर वो पोटैटो हैं तो दे विल हैव सेम कैरेक्टर्स। In the same way, if we talk about the example of lion, Panthera leo is the scientific name, और scientific name में two words होते हैं। फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है एंड सेकंड रिप्रेजेंट स्पीशीज़। सो यहाँ पर जो है लॉयन की स्पीशीज़ क्या है? लियो। सो ऑल द लियोज विल हैव द सिमिलर characters. So we can say these are the group of individuals which have similar characters, and they can interbreed to produce the young ones of their own kind. After species there is genus. So what is genus? A group of closely related species is called genus. देखिए लोवेस्ट जो कैटेगरी है वो स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ के बाद क्या आता है? जीनस। तो जितनी भी स्पीशीज़ जो कि एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं उनको एक जीनस में रख दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, टमाटो एंड ब्रिंजल। वैसे तो ये 3 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, लेकिन इन तीनों की जो है इनका जो जीनस है दैट इज़ सोलेनम, क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे? एक दूसरे से रिजेंबल करेंगे। अब आप पोटैटो, टमाटो और ब्रिंजल की अगर आप बात करें, आप कहेंगे मैम कौन से कैरेक्टर्स? अगर कोई फ्रूट है तो कोई क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम है। लेकिन अगर हम लीफ के बेसिक डिज़ाइन की बात करें तो हम बात करें कि रूट का के टाइप की बात करें, या फ्लावर के अंदर जो है कितने पेटल्स प्रेजेंट हैं, तो दे विल हैव मेनी सिमिलैरिटीज़। और इस तरह की सिमिलर स्पीशीज़ को हमने क्या किया है? एक जीनस में रख दिया जाता है। सो द जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। तो यहाँ ये प्लांट का एग्जाम्पल था। इन द सेम वे एग्जाम्पल ऑफ पैंथीरा, पैंथीरा लियो, पैंथीरा पार्डस, पैंथीरा टिग्रिस। लियो लॉयन, टिग्रिस टाइगर एंड पार्डस इज लिपर्ड। तो यहाँ पर ये तीनों जो हैं दीज आर द 3 डिफरेंट स्पीशीज़, लेकिन इन तीनों स्पीशीज़ में हम क्या देख रहे हैं कि जीनस इज़ पैंथेरा, क्योंकि इनके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं दे आर रिजेंबलिंग विद ईच अदर, इसलिए इन तीनों स्पीशीज़ को एक ही जीनस में रख दिया गया है एंड द जीनस इज़ पैंथेरा। So we have talked about the species, group of similar organisms which can interbreed. These are called as species. फिर बारी आई जीनस की, तो जीनस में हम डिफाइन करेंगे ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। एंड उसके बाद स्पीशीज के बाद नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली। सो व्हाट इज़ अ फैमिली? अ फैमिली, अब देखिए बेटा, हमने इससे पहले यानी इससे पीछे वाली जो हिरार्की है उसमें जो कैटेगरी है, कैटेगरी में क्या था? जीनस। तो फैमिली को डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलेंगे? अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा और जीनस, यानी क्लोजली रिलेटेड जीनस जो हैं वो क्या बनाएंगे? एक फैमिली बनाएंगे।
फैमिली के जो कैरेक्टर्स हैं उसमें हम दे कैन बी कैरेक्टराइज उसके वेजिटेटिव यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को भी देख सकते हैं। वेजिटेटिव मीन्स रूट, स्टेम और लीव्स, और इवन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को भी कंसीडर किया जा सकता है। अगर हम बात करें प्लांट्स की, इन प्लांट्स जीनस हमने किसकी बात की थी, सोलेनम। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पिट्यूनिया या धतूरा। दीज आर द 3 जीनस, और इन 3 जीनस के जो फैमिली है दैट इज़ सोलेनेसी। यानी अब क्या होगा कि इनके कुछ ज़्यादा क्लोज रिलेटेड जीनस वाले ऑर्गेनिजम्स को एक ही फैमिली में रख लिया गया है। इन द सेम वे एनिमल्स में अगर हम बात करें तो ग्रुप पैंथेरा एंड जीनस फैलिस बिलोंग टू फैमिली फेलिडी, यानी पैंथेरा और जो फैलिस हैं इन दोनों का, ये दोनों जीनस हैं, फैलिस भी एक जीनस है, पैंथेरा भी एक जीनस है, और ये दोनों ही जीनस जो हैं तो एक ही फैमिली में दे आर कैट एंड द नेम ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड एज फेलिडी, यानी कि कैट फैमिली। इन डिपेंडिंग अपॉन, यानी हम किस कंक्लूजन पर पहुँचे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक टेक्सोनॉमिक हिरार्की है, सबसे टॉप मोस्ट किंगडम है, सबसे लोअर मोस्ट स्पीशीज़ है। तो जैसे जैसे हम स्पीशीज़ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो स्पीशीज़ के बाद आता है नेक्स्ट हम जो पढ़ते हैं दैट इज़ जीनस। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस पीपीटी, फ्रॉम दिस यू कैन अंडरस्टैंड वेल। सी हेयर इट इज़ व्हाट इज़ रिटन, सबसे लोअर मोस्ट कैटेगरी स्पीशीज़, स्पीशीज़ के बाद क्या है, जीनस। तो स्पीशीज़ को हमने डिफाइन किया कि जो ऑर्गेनिजम्स सिमिलर हैं और इंटरब्रीड कर सकते हैं वो स्पीशीज़ हैं। जीनस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज़, ठीक है। सिमिलर स्पीशीज़ को एक जीनस में रख दिया, सिमिलर जीनस को एक फैमिली में रख दिया, सिमिलर फैमिलीज दे फॉर्म ऑर्डर, and similar orders they form class, and similar classes they form phylum or division, and the organisms which are kept in the same phylum or division they are kept in one kingdom। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में टेक्सोनॉमिकल हिरार्की है, लोअर मोस्ट स्पीशीज़ हैं और टॉप मोस्ट किंगडम है। आपको डेफिनेशन सिर्फ इस तरीके से लर्न करनी है कि अगर आप ये सीक्वेंस लर्न कर लेते हैं इन दिस वे देन इजीली यू कैन डिफाइन, बिकॉज इफ़ यू हैव लर्न दिस सीक्वेंस स्पीशीज़ के बाद जीनस, फैमिली, ऑर्डर, देन इजीली यू कैन से और यू कैन डिफाइन कि जीनस क्या है, सिमिलर स्पीशीज़ का ग्रुप। इफ़ समबडी आस्क यू व्हाट इज़ जीनस, तो आप क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज़। इन द सेम वे डिफाइन फैमिली, ग्रुप ऑफ सिमिलर genus. So this is about the taxonomic categories, and rest we will continue in our next class.